السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز۔ میں ہوں عمیر نذیر۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی اہم علاقائی خبروں پر۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کی چنیوٹ آمد۔ انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فسادی خان 4 سال اس ملک کی ترقی کا دشمن بن کر اپنے لوٹے سمیت مسلط رہا ہے۔ جلد این ٹی ڈی سی کے 1000 ارب کے منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، جس کا سفر جاری رہے گا۔ تحصیل للیاں میں 500 میگا واٹ کا منصوبہ مکمل۔ گریڈ اسٹیشن کے افتتاح کی تقریب میں وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا خطاب۔ پاکپتن شریف میں عثمان بزدار کی آمد۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شگر پر حاضری۔ عثمان بزدار نے مزار شریف پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور عمران خان کے لانگ مارچ کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور محکمہ زراعت توسیع کا اشتراک زرعی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر اقرار احمد خان گوگیرا میں گندم اگاؤ آگاہی مہم میں خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ غذائی استحکام ہی ملکی استحکام کی ضمانت ہے۔ زراعت آفیسر توسیع مرکز گوگیرا رانا محمد عمر نے گندم کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ جو اوپر والی زمین کو بھربھرا کرتے ہیں وہ مائکروز ہیں۔ مائکروز نے زمین کو اتنی اچھی حالت میں رکھنا ہوتا ہے کہ وہ زرخیزی کو بڑھاتے ہیں۔ جب ہم زمین کو سٹبل کو آگ لگاتے ہیں تو وہ آگ لگانے کی وجہ سے وہ تمام جو فائدہ مند مائکروز ہیں وہ سب کے ساتھ جل کر ختم ہو جاتے ہیں اور زمین کی زرخیزی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میری سب ذمہ دار حضرات سے اور سب اسٹوڈنٹس جو ذمہ دار گھرانوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور ان کو اس پروگرام میں شامل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر گھر کا جو پڑھا لکھا بچہ ہوتا ہے یا جو بیٹی ہوتی ہے اس کی بات اپنے گھر میں مانی جاتی ہے۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع ساہیوال ڈویژن چودھری محمد شہباز اختر نے کہا کہ کسانوں کو گھر گھر جا کر گندم اگاؤ مہم میں شرکت کر کے نوجوانوں نے نئی روح پھونک دی ہے۔ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر اقرار احمد خان نے کہا کہ صوبہ پنجاب پر اس تاریخی سیلاب کے بعد ملکی غذائی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گندم میں مکئی کا آٹا ملا کر کھانے سے گندم کی کھپت میں کمی کی جا سکتی ہے۔ دیپال پور کیمپس اکاڑا کے پرنسپل ڈاکٹر طارق عزیز نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دیپال پور کیمپس ساہیوال ڈویژن کی گندم مہم میں محکمہ زراعت توسیع کے شانہ بشانہ کسان خدمت میں مصروف ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مکئی کو ہم نے اڈاپٹ کیا۔ اب ہماری کارکردگی دیکھ کر گورنمنٹ نے ملٹی پرپز سوسائٹی کرتی ہے۔ اب ہم گندم پہ اور تیزدار اجناس اور باقی جتنی بھی فصلات ہیں اس پر بھی اتنا ہی کام کر رہے ہیں جتنا ہم آلو پہ کرتے ہیں۔ میں نمائندگی کرتے ہوئے پوٹیٹو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا چیئرمین ہوں پنجاب کا، اور مرکز میں بھی ایگریکلچر فوڈ پروسیسنگ کونسل کا ممبر ہوں اور بامرا کا بھی ممبر ہوں۔ پوٹیٹو گروئر ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر مقصود احمد جٹ نے زرعی یونیورسٹی کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ زراعت توسیع اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا ایک پیج پر ہو کر گندم مہم چلانا قابل تکلیف ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع راؤ محمد ریاض انجم نے اسموک کے بارے میں آگاہی پھیلانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع چودھری محمد اعجاز اور رائے محمد سلیم نے بھی اس موقع پر شرکاء سے خطاب کیا۔ پروگرام میں کلیہ زراعت ڈاکٹر سرور احمد خان، ڈاکٹر مظہر حسین رانجھا، ڈاکٹر مسعود اقبال اوان، ڈاکٹر طارق مصطفیٰ، ڈاکٹر شعیب رحمان، ڈاکٹر احمد رضا، ڈاکٹر تنویر، ڈاکٹر خالد نوید، ڈاکٹر سدرا اقبال، رانا وحید احمد خان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پروگرام میں مرکز گوگیرا سے کسانوں کی کثیر تعداد کے علاوہ میڈیا پرسن، سول سوسائٹی، اساتذہ، طلباء، تاجران اور علاقے کے معززین نے بھی شرکت کی۔ پروگرام کے اختتام پر ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا۔
हैदराबाद में पहला ऑल सिंध अब्दुल मनाफ नज़ामानी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट का एहतमाम ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBS सिंध अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी सदर ऑल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वापडा वर्कर्स यूनियन ने किया। ये ऑल सिंध मुन्नाफ मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 8 नंबर अकबरी ग्राउंड के ऊपर मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी थी जो अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब ने इसका इब्तिदा किया है किक लगा के आपके सामने। और इस टूर्नामेंट के अंदर सिंध की 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं और ये इंशाल्लाह 15-16 दिन टूर्नामेंट चलेगा। और ये खेल आपको पता है कि फ़ुटबॉल एक गरीब खेल है और हमारे रहनुमा मज़दूर रहनुमा अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब जो मज़दूरों की कफ़ालत कर रहे हैं, हर तरह से उनके मामलात मुतालबात जो भी होते हैं वो मनवाते हैं। तो उन्होंने फ़ुटबॉल के लिए भी इसी ग्राउंड पे ऐलान किया था कि मैं एक टूर्नामेंट कराऊंगा और आज उन्होंने हमें परमिशन दी कि आप ये टूर्नामेंट स्टार्ट कर दें। तो आज इसका इब्तिदा हो गया है और इंशाल्लाह इसका जो फाइनल है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा, जो आप देखेंगे शायद पूरे सिंध के अंदर या पूरे पाकिस्तान में इस तरह ये फाइनल नहीं हुआ होगा। ये मेरे को अपने शायकीन की भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, अपने दोस्तों का भी, वापडा के जो अहदेदार यहाँ आए हुए हैं वो उनका भी, और जो दूर दराज से कराची की टीम और मेरे कराची के साथी सलीम पटनी इंटरनेशनल PIA आए हुए हैं, KC के इखलाक बलोच आए हुए हैं, आकिब साहब आए हुए हैं, शब्बीर साहब आए हुए हैं। तो ये आज अफसोस इस बात का भी है कि हमारा एक बहुत लीजेंड प्लेयर पाकिस्तान का बेस्ट परफॉर्मेंस सदारती अवार्ड याफ्ता अली नवाज बलोच वो आज इंतकाल कर गए। हमें उनका भी बहुत अफसोस है क्योंकि ओपनिंग की वजह से हम नहीं जा सके कराची, हमें जाना था। इंशाल्लाह हम शिरकत एतवार को करेंगे, उधर जाके दुआ मग़फ़िरत करेंगे उनके लिए। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा फ़ुटबॉल एक गरीब खेल है जिसकी रहनुमाई हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अभी इलेक्शन भी हमारे करीबी हैं, उस इलेक्शन की भी तैयारियां हैं इंशाल्लाह। और ये फ़ुटबॉल इंशाल्लाह जिस तरह हो रहा है 8 नंबर में, तो इधर कोई फ़ुटबॉल कराने वाला नहीं था। आप देखें जब हम फ़ुटबॉल शुरू करते हैं वो वापडा ग्राउंड हो। ऑल सिंध अब्दुल मनाफ मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी अभी की गई है। इसमें 24 टीमें, सिंध की जो मशहूर टीमें हैं हमें कराची के, वो इसमें मुकाबले में मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला ये एक ऐसा मौका है कि खिलाड़ियों को एक नए मौके फराहम करेगा, जहाँ खिलाड़ी जो है अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। और ये भी होगा कि हम नौजवानों को इस बात की तरफ राग़िब करेंगे कि खेल के अंदर जो है आप शिरकत करें और खेल आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, आपकी जिस्मानी सेहत, नशो नमा और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। कि खिलाड़ी जहाँ भी जाता है तो मुल्क का सफ़ीर होता है। तो खेल को आगे बढ़ाओ और बाकी चीज़ों को सब ख़त्म करो, तालीम को आगे बढ़ाओ ताकि तालीम आगे बढ़े और खेल आगे बढ़े। और फुटबॉल जो है हमारा बुनियादी खेल है हमारे मुल्क का, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको चाहिए अपना किरदार अदा करें। आज हैदराबाद में अब्दुल मनाफ निज़ामानी यादगारी टूर्नामेंट का जो इनेकाद किया गया, इसमें मैं सबसे पहले तो जो काविशें आज़म खान साहब की हैं, जिनका ताल्लुक़ आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के सूबाई ओहदे से है, उनकी इंतहाई अच्छी काविशें हैं कि उन्होंने एक तरफ मुनाफ की यादों को ताज़ा रखने के लिए और जो कुछ उन्होंने हमारे साथ वक्त गुजारा उसको भी ताज़ा रखने के लिए और फ़ुटबॉल को प्रमोट करने के लिए जो इनेकाद हुआ है, इस पर हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं। और जहाँ तक मुनाफ की ज़िंदगी और मुनाफ की जद्दोजहद का ताल्लुक़ है कि आज यादगारी टूर्नामेंट इसलिए मना रहे हैं कि मुनाफ आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूथ के पूरे सिंध के चेयरमैन थे और उन्होंने बड़ी बहादुरी से इस यूनियन को और इस मज़दूरों के जो काविशें हैं उनको ज़्यादा मरा देने के लिए पूरे सिंध में बड़ी जद्दोजहद की, इस यूथ को बड़ा ऑर्गेनाइज़ किया। लेकिन अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी कि वो हमसे बहुत जवान उम्र में सिर्फ 27-28 साल बरस उम्र थी, उसमें हमसे जुदा हो गए। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जा अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हम इसी तरह उनकी याद को ताज़ा रखें और इस खेल के ज़रिए हम इस खेल को और यहाँ के लोगों को, रहने वालों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पे सेहतमंद करें। यकीनन ये हमारे लिए और मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी।
सियालकोट में तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का वर्कर से खिताब करते हुए कहा कि कायद पीटीआई इमरान खान कायद आज़म सानी है। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान का साथ दें। इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च को कामयाब बनाने के लिए हमें सीसा पिलाई दीवार बनकर जलूस में शामिल होकर इस्लामाबाद की दरो दीवार को हिलाना है। इमरान खान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कायद आज़म के बाद अगर कोई लीडर हमें मिला है तो वो सानी कायद आज़म इमरान खान है। सियालकोट की 16 सीटों पर तहरीक इंसाफ को ही कामयाब करवाएंगे। उसमें जिस तरह का हरावन दस्ते का किरदार अदा किया, इन बच्चों को स्पेशली हमने आज मदऊ किया है कि मेरे हल्के के नौजवान चमकते दमकते सितारे हैं। ये ज़िला सियालकोट का फख्र है और ये लीड करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से जो काफिले जाएंगे ये बच्चे उनको लीड करते हुए जाएंगे, क्योंकि आपका लहू गरमाने का, आपको जोश दिलाने का भी कोई ना कोई जरिया होना चाहिए। तो लिहाजा जो लोग आज इमरान खान के हवाले से मीडिया में बैठ के, मीडिया से बाहर नून लीग हो या ये 13 जमातों का मरबा हो, वो सुन ले। इमरान खान का मकसद पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। इमरान खान का मकसद अदारों से लड़ना नहीं है। इमरान खान का मकसद अदारों का वकार और अदारों की साख को मजबूत बनाना है। इमरान खान और पाकिस्तान की अफवाज लाज़िम मज़लूम है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान का एजेंडा और मंशूर पाकिस्तान की हिफाजत, सलामती और पाकिस्तान की मजबूती है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। यही इमरान खान का मंशूर है, यही अफवाज पाकिस्तान का मंशूर है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजबूत बनाने में इमरान खान और अफवाज पाकिस्तान अपने अपने फ़राइज़ की अदायगी आसान तरीके से अदा करेंगे। हम बॉर्डर पर रहने वाले लोग जो हैं, हमारा हल्का बॉर्डर पे आता है, हम अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को नहीं भुला सकते। हम ये नहीं समझते कि अफवाज पाकिस्तान को गाली देके, हिंदुस्तान को खुश करके कोई भी पीटीआई का कारकुन जो है वो इमरान खान से मोहब्बत निभा है। इमरान खान का नजरिया पाकिस्तान की जंग लड़ना है और अफवाज को कमजोर करके पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। लिहाजा जितने भी हमारे इस पंडाल के अंदर बैठे साथी हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये समझें कि इमरान खान का मकसद क्या है। इमरान खान की सोच और विजन को समझें और एक मजबूत तरक्की याफ्ता खुशहाल पाकिस्तान, जिसके अंदर इंसाफ की फराहमी को यकीनी, आपके मेरिट की बालादस्ती और आपके बुनियादी हकूक का जो तहफ़्फ़ुज़। विहाड़ी के डीपीओ जफर बुज़दार और डीएसपी मेलसी मलिक एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर्कल के तमाम एसएचओ मौजूद थे, जिन्होंने करमपुर में खुली कचहरी लगाई। वहां पर डकैती का सामान और मोटरसाइकिल और मोबाइल मालिकान के हवाले किए। अच्छी कारकर्दगी करने वाले पुलिस एहलकारों को इनाम भी दिए गए। इस मौका पर प्रेस क्लब करमपुर और विहाड़ी मेलसी के सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। चौधरी मोहम्मद सईद सीईओ एजुकेशन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल 55-4R साहिवाल में मॉडल क्लासरूम के इफ्तिताह के साथ साथ पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। हेडमास्टर इमरान संधू और दीगर स्टाफ मेंबरान ने सीईओ और हाजी इस्लाम का भरपूर इस्तकबाल किया। नज़ीर अहमद खान बलोच ने हेडमास्टर साहिब, सीनियर टीचर खालिद सलीम, पीटीआई और दीगर स्टाफ मेंबरान की मेहनत अदारा हाजा की खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत है। हेडमास्टर इमरान संधू ने सीईओ एजुकेशन का शुक्रिया अदा किया। सीईओ एजुकेशन ने हेडमास्टर इमरान संधू और दीगर स्टाफ मेंबरान की मेहनत को सराहा। वादिया नीलम आज़ाद कश्मीर ग्रेस के गांव डना में 70 साल बाद रोड पहुंचने पर आवाम इलाका में खुशी की लहर दौड़ उठी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा एन न्यूज़ रिजवान गुल मिन्हास से।
हमने जो ज़मीनें यानी कि ख़रीदी है या अपने यानी मदद आप करके यानी अपनी जेब से पैसे देकर है ये ज़मीन ख़रीदी है, समझ लिया ना। जो रोड के यानी ज़मीनें जो हमारे अपनी यानी ज़मीनें हैं वो तो गए, जो और भाइयों से मुसलमानों से हम अपने रिश्तेदारों से ज़मीनें यानी मसलन के रोड के लिए बड़ी मुश्किलात थी, उनको हमने अपनी जेब से पैसे देकर है और ये ज़मीनें हमने ख़रीदी है, समझ लिया। तो ये बात है। अब मेरा भाई है, मेरा दूसरा भाई बात करेगा कारी। मौजूद हूँ वादी नीलम ग्रेस के एक ऐसे गांव में जिसकी आबादी तकरीबन 1500 से 2000 के लगभग है और ये इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन अरकान असम्बली और जो यहाँ से वोट लेते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो इस एरिए में आते हैं, लेकिन इलेक्शन गुजर जाने के बाद यहाँ पे नज़र नहीं आते। तो तकरीबन आज से कई साल तक मतलब कि 60-70 साल यहाँ रोड की कोई सहूलियात मौजूद न थी। यहाँ पर एक स्कूल मौजूद है, वो भी अवाम इलाका ने अपनी मेहनत से और अपने तावन से बनाया हुआ है। यहाँ एक नहायत ही जो कीमती असासा है इस इलाके के अरसल ख़ान सिद्दीकी साहब, उनकी मेहनत और उनकी अज़मत को सलाम के उन्होंने मामले ख़ुसूसी स्पीकर कौमी असम्बली आज़ाद कश्मीर बनने के बाद अवाम इलाका डना, जनवई डना और फुलवई डना को एक नहायत ही कीमती तोहफ़ा दिया, जो कि ये रोड है। इस रोड के आने की वजह से तमाम बुनियादी जैसे डिस्पेंसरी, स्कूल, दीगर सहूलियात में कमी वाज़िह नज़र आएगी। तो आइए माज़ीन इलाका से जानते हैं कि यहाँ पे रोड आने की में मतलब कि किसने कितना किरदार अदा किया और कितनी सहूलियात इनको मैसर आई। तो माज़ीन इलाका से जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। जी कारी साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, आप माज़ीन इलाके हैं, यहाँ पे काफ़ी अरसे से आबाद हैं, रहते हैं और आपको काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। सर्दियों में यहाँ पे आम दरख्त का आना जाना और काफ़ी मुश्किलात हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पे जो रोड आई है इससे अवाम इलाका को क्या फ़ायदा होगा और इसके मतलब के मुस्बत अंदाज, मुस्बत असरात पड़ेंगे या मनफी असरात? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बहुत बहुत शुक्रिया गुज़ार हूँ मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस मालिक ने हमें इस काबिल बनाया, और उसके बाद यानी हम अपने कायद यानी कि शाह साहब के शुक्रगुज़ार हैं और हम अपने अज़ीज़ यानी अरसल ख़ान सिद्दीकी के शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने की जदोजहद से ये रोड यहाँ तक आई। हम बहुत यानी परेशान थे, बोझ जो हमें बाज़ार से उठाना पड़ता था वो यानी कि मसलन कि अब हमारे सर से उतरेगा, और ये आबादी जो ज़मीन थी यानी कि आबाद करने से हमें बहुत मुश्किल पड़ती थी, वो हमें यानी कि ट्रैक्टर के ज़रिए हम ज़मीन को आबाद करेंगे, समझ लिए नहीं ये सहूलत। और हमारे जब आदमी बीमार होते तो वो यहाँ से उठाकर हम नीचे बाज़ार को ले जाते, गाड़ी के यानी कि हमें बहुत मुश्किलात थी। अब अल्लाह ने ये रोड हमें दिया, इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी होगी तो गाड़ी यहाँ आएगी, हमारी यानी जो बीमार हो गया वो उठा कर ले जाएंगे और छोटे मोटे जो हमारे मजबूरियात हैं वो निकल जाएगी इंशाअल्लाह, समझ लिया ना। तो मौजूदा हुकूमत की भी हम शुक्रगुज़ार हैं जिनकी यानी कि तवज्जो से हमारे यानी सहूलियात में आज तक इस आवाम से सिर्फ वोट लिया गया, उनको दिया कुछ भी नहीं गया। क्यों? बुनियादी सहूलत जो चीज़ होती है, वो बुनियाद जो चीज़ होती है वो रोड है। रोड से आज तक ये इलाका महरूम रहा है। आज भी ये रोड निकला है हुकूमत की तरफ से जो दिया गया, उसके अलावा अवाम इलाका के अवाम ने अपने जेबों से पैसे दे के ये ज़मीन ख़रीदी है। तो हमारी तो दरख्वास्त हुकूमत से ये है कि जहाँ रोड दिया जाता है वहाँ तो ज़मीन की ख़रीदारी हो या कि दरख्त की कटाई हो, उनके भी पैसे हुकूमत की तरफ से अदायगी होती है। यहाँ तो अवाम इलाका ने ख़ुद अपने जेबों से पैसा दे के ख़रीदा है। इसके बारे में हुकूमत गौर करे। कम से कम यहाँ से आज से हम अब बूढ़े होने वाले हैं, आज तक वोट लेते रहे हैं यहाँ से, तो वोट लेने वालों को कम से कम इतना गौर करना चाहिए कि यार यहाँ से अब भी ये अवाम इलाका अपने जेब से क्यों पैसे दे रहे हैं। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाक पटन, प्रेस क्लब आरफवाला समेत दीगर डिवीजन साहिवाल सहाफ़ती तंजीमों के ज़ेर एहतमाम वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब साबिक सदर प्रेस क्लब आरफवाला हाजी अयूब के बेटे आफाक अयूब के खिलाफ थाना सिटी आरफवाला झूठी FIR के खिलाफ सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सैयद हसन अब्बास बुखारी की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी
मियां ताहिर रहीम मौला, राउफ कामरान, उसामा जुबैर, चौधरी मोहम्मद अकरम, मलक मोहम्मद अकरम, फौजी रियाज, अहमद शाद, चौधरी मोहम्मद असलम, मियां जावेद रजा वट्टू, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद नईम, मोहम्मद इब्राहिम, सैयद नसीम अस्करी, मलक रेहान नवाज, डॉक्टर सलाहुद्दीन, मोहम्मद नजीर खर, हाजी मोहम्मद शफीक फूल, राना अता फरीद, असगर ढुड्डी, प्रोफेसर अब्बास आरफी, आबिद कम्बो, मलक शफीक काशिफ, अब्बाद हाजी, मोहम्मद मुश्ताक बलोच, राना मोहम्मद मकबूल, रजा शाह, जरीद सजाद, सफदर सुखेरा, मोहम्मद यार गुज्जर, चौधरी मोहम्मद लतीम, मोहम्मद यूनस, जम्मू मुजम्मिल, जोया आसिफ जोया, अमजद जोया, डॉक्टर गफूर हाजी इजाज, डॉक्टर मोहम्मद नफीस शहजाद भट्टू, सैयद नसीम अस्करी, अजीम हाशिम, पीर अमीर चिश्ती, जैन अली समेत कसीर तादाद में सहाफ़ियों की शिरकत। तमाम सहाफ़ी बरादरी ने प्रेस क्लब आरफ वाला रजिस्टर्ड से जनाह चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली से हसन अब्बास बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि जिला भर के सहाफ़ियों की मुशावरत से डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टिंग का मुकम्मल बाइकआउट 2 नवंबर तक हाजी मोहम्मद अयूब के बेटे आफाक के खिलाफ मुकदमा खारिज ना किया गया तो एहतजाज का दायरा कार पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान भर में बढ़ा दिया जाएगा। एहतजाजी रैली में सीनियर सहाफ़ियों की खुसूसी शिरकत। हमें हर दफा अपना हक छीनना क्यों पड़ता है? क्यों अदारों को शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए ऐसे अदारों को कि झूठे FIR दे देते हैं। क्यों देते हैं झूठी FIR? हम सहाफ़ी भाई साहब डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के और आरेवाला के आज इकट्ठे हुए हैं। कल अगर हमको DPO के पास, RPO के पास, वज़ीर आला के पास कहीं भी जाना पड़ा, हम अपनी हक की खातिर जाएंगे। और हमें बहुत अफसोस हुआ है कि हाजी अयूब साहब के बेटे पे झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है और ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स और देखते रहिए N न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।